Good evening, everyone. Am I clearly audible? Wonderful. So, do we have any doubt from the previous class? Do we have any doubt from the previous class? Please tell me. Yes, no? No. So, today we will be finishing with environment and ecology. Okay? So, if you have any doubts from that, you can ask those doubts. Okay? Wonderful. So, let us begin with the class. Today, in the species, whatever I am telling you, इतना ही आप याद रख लेंगे, more than sufficient. ठीक है? जितना बता रहे हैं उतना ही अगर आप याद रख लेंगे, that will be more than sufficient. ठीक है? Oliver Ridley तक हम लोगों ने कल कर लिया था. We completed that. Today we'll understand that there is an Indian flagship turtle. This was found doing smuggling. Okay, एक flagship turtle है which was found by the forest officer Odisha. उसकी smuggling हो रही थी. Not that important. ठीक है कि क्या है क्यों है. Fresh water turtle है. बहुत सारे turtles है. तो अगर पूछना है UPSC तो ये नहीं पूछेगा. Okay, अगर UPSC को पूछना तो it will not ask Indian flagship turtle. Now, Indian biologist Shailendra Singh, he received an award, that is the Behler Turtle Conservation Award. Okay, Behler Turtle Conservation Award, or it is like a Nobel Prize. Okay, it is like a Nobel Prize for the conservation of turtles. मतलब बहुत क्या सबसे बड़ा एक तरीके से it is the prize for the turtle conservation. किसे मिला है? शैलेंद्र सिंह को मिला है. क्यों मिला है? So he brought back 3 species that were in the brink of extinction. 3 turtle species को उन्होंने extinction के brink से वापस लाए and इसीलिए इन्हें Behler Turtle Award मिला. Okay, that is why he got the Behler Turtle Conservation Award. Now ये जो award है, it is presented by the Turtle Survival Alliance, IUCN Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group, and the Turtle Conservancy and Turtle Conservation Fund. तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बस एक IUCN बड़ा है, बाकी सब में टर्टल है. ठीक है, बाकी सब में टर्टल है, बस ये याद रखिएगा. अब वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं जिनको शैलेंद्र सिंह ने वापस लेके आए, that is important for us. तो बेटा these 3 species are northern river terrapin. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? Which of the following are critically endangered? They may give you the species of turtles and ask which of the following are critically endangered. So first is northern river terrapin, second is red crowned roof turtle, and third is black softshell turtle. These are the 3 species. Northern river terrapin, ये तो सबसे important है, critically endangered आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है, it is conserved in Sundarbans region. So conservation of this species in the Sundarban region. Then there is red crowned roof turtle. It is being conserved in the Chambal region, and black softshell turtle, it is conserved in the temples of Assam. Okay, not any protected area, but in the temples of Assam. Black softshell turtle. बेटा ये फोटो में है, that is the northern river terrapin. Northern river terrapin. ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, that is the critical endangered है, appendix 1 में appendix 1. Second is the red crowned roofed turtle. It is also critically endangered, लेकिन sites में appendix 2 में है. Northern river terrapin is in appendix 1 of sites. It is in appendix 2 of sites. Okay. Now, इंडिया में सिर्फ चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी जो है वहीं पर पाया जाता है. ठीक है. और there is black softshell turtle. It is classified previously as the extinct in wild, लेकिन now because of the conservation efforts, so it is now critically endangered. So black softshell turtle, ये 3 turtle. ठीक है, this is very important. The red crowned roof turtle, northern river terrapin, and black softshell turtle. Clear? Very good. ये बहुत सारा, इतना नहीं देखना है, जितना बता उतना याद रहे. बहुत है. अब जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कड़ी निंदा की है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन. ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कड़ी निंदा की है प्रोजेक्ट डॉल्फिन की. ये स्टार्ट होना था 2019 में, और जो है बहुत एम्बिशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है. लेकिन बेटा दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री.
समझ में आया? कड़ी निंदा की है, लेकिन इट इज नॉट implemented by Jal Shakti Ministry. Project Dolphin is implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये चीज याद रखनी. दूसरा, Project Dolphin is on the same lines of Project Tiger. Third thing, it is initiated at the meeting of National Ganga Council. Okay, so हमारे Prime Minister ने इसको initiate किया. Is it clear? Ganges Dolphin क्या है? Ganges Dolphin ये, ठीक है, it is our national aquatic animal. Oh sorry, हाँ, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है. इसको सुसु बोलते हैं इन द लोकल लैंग्वेज. ठीक है, इट इज कंप्लीटली ब्लाइंड. ओके, सुसु क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन इट कम्स आउट ऑफ वाटर इट प्रोड्यूसेस अ साउंड जो ऐसे आते. ओके, सो इट इज द सुसु साउंड, इसलिए इसको लोकल लैंग्वेज सुसु भी बोला जाता है. ओके, वेरी गुड. अब डॉल्फिन पॉपुलेशन जो चिल्का में है वो बढ़ गई है. तो चिल्का बेटा लार्जेस्ट लगून लेक है इंडिया का. ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट लगून लेक है. उसमें 6 टाइप की डॉल्फिन पाई जाती है. 6 टाइप की पाई जाती है. कौन सा है? ये वाली. ठीक है, इरावदी डॉल्फिन. फोटो देख लो, देखने में अच्छी लग रही थी फोटो, स्टेटल वाली. ठीक है, इरावदी डॉल्फिन. देखो डॉल्फिन की एक चीज देख रहे हो, डॉल्फिन में हमेशा चेहरे पे स्माइल दिखेगी आपको. कोई भी डॉल्फिन देख लो, देखो, है ना, इसीलिए डलवाया था. इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन, इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन, फिनलेस डॉल्फिन एंड ये है आपकी स्ट्राइप्ड डॉल्फिन. ठीक है, ये सारी डॉल्फिन. अब इनमें से कौन सी डॉल्फिन क्या है तो ये समझिएगा. इनमें से जो फिनलेस डॉल्फिन है इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. फिनलेस डॉल्फिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके, फिनलेस डॉल्फिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. बाकी सब एंडेंजर्ड है या फिर नियर थ्रेटेंड है. जस्ट फिनलेस डॉल्फिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके, चिल्का लेक इंपॉर्टेंट है. चिल्का लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा सब कुछ यहाँ पे अच्छा अच्छा मिलता है एंड इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट. जब रामसर साइट्स इंडिया में डिक्लेयर होते इट वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट. ओके, इंडिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है चिल्का लेक. क्लियर? मैप में देखेंगे तो ये कहाँ पड़ता है चिल्का लेक? बेटा कौन से स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा. उड़ीसा में पड़ता है. वेरी गुड. अब बेटा गोल्डन लंगूर है. आसाम विलेजर ने बोला कि जो गोल्डन लंगूर है ना, इसको प्रोटेक्ट जहां पे हम कर रहे हैं उस एरिया को आप वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर ना करें या सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर ना करें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गोल्डन लंगूर. गलत बात है? करना चाहिए, है ना? नहीं, लेकिन विलेजर्स कह रहे हैं आप कर दोगे तो जितना हमने सारा कंजर्व किया सब खराब कर दोगे. बिकॉज जो प्रोटेक्टेड एरिया बनेगा दैट विल बी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. जो रीजन है कोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट in Assam, that is right now a conservation area or a community forest under the Forest Right Act. और the locals ने इस एरिया को इतने अच्छे से कंजर्व किया कि जहां पर फॉरेस्ट कैनोपी की less than 5% रह गया था, अब वो it has increased to more than 70%. Okay, the forest canopy has increased to 70% and the golden langur population which was less than 100 it has increased to 600. Okay, इसीलिए ये न्यूज में. अब गोल्डन लंगूर क्या है बेटा? इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. ये गोल्डन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स फर. लेकिन जरूरी नहीं है सारे गोल्डन लंगूर के फर जो है गोल्डन ही. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ मंकीज. रीजन क्या है? ये कैनोपी पे पाए जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट के जो टॉप एरियाज है वहां पाए जाते हैं. ठीक है, दैट इज द गोल्डन लंगूर. टू सेंचुरीज आर considered as the protected areas. First is Chakrashila Wildlife Sanctuary and Manas Wildlife Sanctuary. Both are in Assam. Chakrashila and Manas Wildlife Sanctuary. Okay, clear? Very good. अब साइंटिस्ट ने एक नया मकाक देखा है. मकाक जो जिसको हम बंदर बोलते हैं ना, वो एक्चुअली बंदर नहीं है, मकाक है. ठीक है, मकाक है. इंडिया में जो है वो उसको रेसिस मकाक बोलते हैं. ठीक है, सही बात बोल रहे. कोई है जूलॉजी वाला? हाँ, इसको एक्चुअली हम लोग मंकी बोलते हैं. दैट इज नॉट मंकी, दैट इज अ मकाक. तो अरुणाचल में साइंटिस्ट ने ढूंढा एक और नया टाइप का मकाक, दैट इज द व्हाइट चीक्ड मकाक. ठीक है, ये पहली बार 2015 में चाइना मिला था, लेकिन इंडिया में अब पाया गया है. क्लियर? बहुत मस्त चीज जानने की ये है दैट दिस स्पीशीज इज नॉट येट कवर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट.
क्लियर? व्हाइट चिक मकाक। ग्रे हनुमान लंगूर गुजरात में मिले हैं, ठीक है। हनुमान लंगूर नाम कहां से है? बिकॉज ऑफ द लॉर्ड हनुमान, ठीक है। लीस्ट कंसर्न है बस ये है कि कहां मिले हैं ग्रे लंगूर, दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ गुजरात, अंकलेश्वर रीजन ऑफ गुजरात। ओके, समझ गए? इतना ही जानना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है स्वैम्प डियर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, एंड इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज दे आर nearly extinct or they are extinct in anywhere in South Asia. Okay, so eastern swamp deer which was generally found in the Kaziranga region, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। रीजन क्या है? फ्लड्स जो थे 2019-20 फ्लड्स आए थे काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसकी वजह से the population of the eastern swamp deer has decreased. Now this decline because of the flooding. लेकिन जो ईस्टर्न स्वैम्प डियर की पॉपुलेशन है, it is not only limited to Kaziranga now it has shifted to Orang also and Lakhua Burchapuri Wildlife Sanctuary of Assam. Okay, लखवा बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न स्वैम्प डियर, इंडिया में 3 टाइप के स्वैम्प डियर मिलते हैं। पहले वेस्टर्न स्वैम्प डियर है जो नेपाल में के आप उसके पास के रीजन में मिलते हैं। दूसरा जो है सदर्न स्वैम्प डियर और या फिर बारासिंगा, ठीक है, जिसको बारासिंगा बोलते हैं। इट इज फाउंड इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज फाउंड इन Assam and Dudhwa National Park, UP. ठीक है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर दुधवा नेशनल पार्क एंड इन दी यूपी एंड काजीरंगा इन असम। ओके बेटा, मीलू डियर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। मीलू डियर चाइना में एक्सटिंक्ट था, चाइना ने जो है बिल्कुल इसको वापस कंजर्व करके इस तरीके से कंजर्व कर लिया है दैट द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। ओके, पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। अब ये बहुत जरूरी एनिमल था फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, बिकॉज ये जो मीलू डियर है, मीलू डियर को मिट्टी में खेलना बड़ा अच्छा लगता है। दे रोल इन दी मड, और जब ये मड में रोल करते हैं तो एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसका ऑटोमेटिकली फार्मर्स के लिए कल्टीवेशन के लिए मल्चिंग हो जाती है। ओके, तो दे एक्ट एज हेल्पर फॉर दी फार्मर्स। अब इनका पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? मीलू डियर चाइना में फाउंड होता है, पहली बात। दूसरा, पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? पहला, मीट के लिए हंटिंग होती है। दूसरा, वेटलैंड हैबिटेट में कम है। तीसरा, एलिसिट माइनिंग एंड लॉगिंग की वजह से फॉरेस्ट जो है कम हो गए हैं, जिसकी वजह से मीलू डियर वाज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ओके, वेरी गुड। इनको पियर डेविड्स डियर भी बोला जाता है, पियर डेविड्स डियर। IUCN में ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। फिर हलारी ब्रीड है, डोंकी की ब्रीड है। पहले तो हलारी ब्रीड है ऑफ डोंकी। ये जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री, ये मालधारी कम्युनिटी का बार एड्रेस कर रहे थे। मालधारी कम्युनिटी दे यूज हलारी ब्रीड ऑफ डोंकी। हलारी ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है लगेज कैरिंग करने के लिए फॉर दी पॉटर्स, कुम्हार, जो कुम्हार कम्युनिटी है जामनगर वहां पर। और दूसरा, इसका मिल्क बहुत फेमस है। इसका मिल्क जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिल्क इन दी वर्ल्ड। 1000 रुपीज पर केजी मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल वैल्यू। ओके, हलारी ब्रीड ऑफ डंकी। ओके, 1000 रुपीज, मतलब कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ, ये गुड मिल्क मत मंगाना, पूछा डू यू हैव हलारी मिल्क, बिकॉज इट इज दी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मिल्क। ओके, हलारी ब्रीड ऑफ डोंकी। इज इट क्लियर? अब डेजर्ट फॉक्स जो है राजस्थान के रीजन में, डेजर्ट फॉक्स है, ऐसे दिखती है, बट बिकॉज ऑफ मांगे डिजीज, देयर इज अ मैंग डिजीज, MANGE, मैंग डिजीज, जिसकी वजह से फर का लॉस होता है। जैसे आपने देखा होगा पेट एनिमल्स में भी या स्ट्रे एनिमल्स में ऐसे हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो यही डेजर्ट फॉक्स में भी देखने को मिली। ठीक है, तो डेजर्ट फॉक्स में ये वाली बीमारी दिख रही, दैट इज मांगे डिजीज। ओके, एक स्टडी हुई है जहां पर जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, जो ढोले है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिख रही है सेंट्रल एशिया में। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज ढोले दे आर कार्निवोरस एंड दे आर द एपेक्स कार्निवोरस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो दे आर हेल्पफुल फॉर बिकमिंग द कीस्टोन स्पीशीज इन द रीजन। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल एशियन लैंडस्केप एंड नॉर्थ ईस्ट। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल एशियन लैंडस्केप एंड नॉर्थ ईस्ट, वहां पाए जाते हैं। ठीक है, ढोले। ओके, क्लियर? ढोले इज एशियाटिक वाइल्ड डॉग।
वेरी गुड। अब इंडियन गौर है, इंडियन गौर ने कुछ प्लास्टिक वेस्ट खाया था तमिलनाडु के ऊटी रीजन में, जिसकी वजह से देयर वाज अ डेथ ऑफ अ इंडियन गौर। इंडियन गौर क्या है? वल्नरेबल है, ये ऐसा दिखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हैबिटेट लॉस है, पोचिंग फॉर मीट एंड ह्यूमन एनिमल conflict and food scarcity. These are the reasons. Habitat loss, poaching for meat, human animal conflict and food scarcity. Clear? अब ऑस्ट्रेलिया में जो कोआला बियर पाया जाता है, ये देखा है कोआला? आपने देखा है? कोआला इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया एंड ये पहले इट वाज vulnerable, now it has been given more protection as an endangered species. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको डिक्लेयर कर दिया है एज अ endangered species. अब कोआला बियर इज अ marsupial. Marsupial means they have a pocket to keep their offspring. जो कोआला बियर है, इनको थ्रेट क्या क्या है? थ्रेट है क्लाइमेट चेंज है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, इनको प्रॉब्लम है वाइल्ड फायर से, जो ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक समर भी बोला जाता है, जो बहुत तगड़ी एक फायर लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर बहुत ज्यादा जो है कोआला बियर का डेथ बहुत ज्यादा हुई थी. प्लस दे सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एज क्लैमिडिया. क्लैमिडिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन होती है, इट फॉर्म्स अ सिस्ट दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी. ओके, समझ गए? वेरी गुड. अब बिहार ने बोला नीलगाय को नहीं मारेंगे. नीलगाय वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्मिंग इनिशियली. उन्होंने नीलगाय को बोला नहीं मारेंगे. क्यों? क्योंकि भाई किसी को मारना ठीक नहीं है. दे विल से दे सेड दैट दे विल प्रोवाइड द स्टेरिलाइजेशन ऑफ नीलगाय, जिससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखा है. ठीक है, नीलगाय जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड्स को खराब कर देती है. ठीक है, नीलगाय तो आप लोगों ने शायद जो भी कभी रूरल एरिया में गए होंगे और नीलगाय देखी होगी और नीलगाय की प्रॉब्लम्स के बारे में पता भी है ना. वेरी गुड. लीस्ट कंसर्न है वर्मिन था पहले, काफी जगह पे भी वर्मिन है, मतलब आप नीलगाय को मार सकते हो कुछ जगहों पर. ठीक है, तो वर्मिन है, लेकिन बिहार ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन. अगर कलर है तो इसको ब्लू बुल को बोला ही गाय बोलते हैं ना, नील गाय बोला जाता है, तो स्टेटस तो है ही सेक्रोसेंट स्टेटस. पिग्मी हॉग. ठीक है, पिग्मी हॉग वर्ल्ड के सबसे छोटे और रेयरेस्ट पिग्स. छोटे और रेयरेस्ट, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. They are critically endangered and they have been provided captive breeding in the Manas National Park of Assam. इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग हुई है जिससे कि ये जो पॉपुलेशन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड पिग्मी हॉग की, बढ़ पाए. ठीक है, दिस हैज बीन डन इन द मानस नेशनल पार्क ऑफ असम. और टारगेट ये है दैट बाय द 2025 थ्रू द प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्राम का जो नाम है पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, 60 पिग्मी हॉग रीच एट द मानस नेशनल पार्क. ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड दे आर अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. क्लियर? ये एंडेमिक टू इंडिया है, इसका मतलब कहीं और नहीं पाए जाते, इंडिया में ही पाए जाते हैं. क्लियर? वेरी गुड. बंगाल मॉनिटर स्मगलिंग हो रही थी, पकड़ लिया है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. मिस केरला क्या है? क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज मिस केरला. ठीक है, मिस केरला कौन सी स्पीशी है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है. मिस केरला क्या है बच्चों? इट इज अ फिश. ठीक है, एक कहावत सुनी है, ये सीरियल वीरियल में कभी कभी एड में भी दिखाते हैं कि उसकी खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ना. ऐसे सुना है, उसकी खूबसूरती उसका सबसे बड़ा दुश्मन. देखा है सीरियल वीरियल में आते हैं, या कोई मूवी डब्ड मूवी में डायलॉग होता है, मतलब डबिंग में कुछ और होता है, हिंदी में जब उसे डब करते हैं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही उसकी खूबसूरती थी. तो मिस केरला के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, दे आर सो ब्यूटीफुल दैट द पीपल दे यूज इट एज एन ऑर्नामेंटल फिश. तो इनकी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कम इसलिए हो रही है क्योंकि एक्वेरियम में रखने के लिए लोग मिस केरला को यूज करते हैं. इनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज डेनिसन बार्ब एंड दे आर इंक्लूडेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाउ. ओके, समझ में आया? इनकी क्यों लॉस हो रहा है? दैट इज because of the habitat destruction due to deforestation. Okay, habitat destruction due to deforestation. दूसरा mining, agriculture, urban expansion and hydroelectric project. Clear? ये डेनिसन बार भी बोलते हैं, रेड लाइन टॉर्पीडो बार भी बोलते हैं, इसको रोज लाइन शार्क भी बोलते हैं.
Are we clear? Very good. Flower scorpion fish है, इसकी जो है पहली बार it is found in the Indian Ocean. Flower scorpion fish, it was generally found in the Pacific Ocean. This is the first time ever that this fish is found in the Indian Ocean. इसीलिए न्यूज़ में फ्लावर स्कॉर्पियन फिश. केसर हिंद आपको कल बता ही दिया था, है ना? वेरी गुड. एक न्यू सिकाडा स्पीशी मिली है नागालैंड. ठीक है, नागालैंड में ये फेमस है अपनी लाउड वॉइसेस के लिए, एंड दे हैव अ स्पेसिफिक अकॉस्टिक सिग्नल जो इनकी कोई भाषा में उनको गाने भी मानते होंगे. ठीक है, दे आर मोस्टली बेनिफिशियल फॉर दी मैच्योर ट्रीज. दे प्रून दी मैच्योर ट्रीज, जैसे वहां से निकल के आते हैं, प्रूनिंग का काम करते हैं. दे एरेट द सॉइल एंड वंस दे डाई their bodies serve as an important source of nitrogen for the growing trees. ठीक है, and they act as a indicator of a healthy forest ecosystem. जब इनके साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो they are they represent a healthy ecosystem. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस है, नाम क्या है? न्यू किकाडा स्पीशीज, इसका नाम रखा है प्लेटोमिया कोहिमाएसिस. क्यों? क्योंकि कोहिमा नागालैंड कोहिमा में पाई गई है, इसलिए प्लेटोमिया कोहिमेंसिस. क्लियर? वेरी गुड. अब सी कुकुम्बर की स्मगलिंग पकड़ी गई है. सी कुकुम्बर को क्यों बोलते हैं? इट इज अ endangered species. Okay, it is a endangered species which is a marine invertebrate. ये कुकुम्बर के जैसा दिखता है, इसलिए इसको सी कुकुम्बर बोलते हैं. It is under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act. क्लियर? मुंबई में 2 पेंगुइन और आई हैं, हम्बोल्ट पेंगुइन. ठीक है, मुंबई के बाइकुला जू में 2 पेंगुइन आई, हम्बोल्ट पेंगुइन. ठीक है, स्लेंडर लायंस, सॉरी स्लेंडर लोरिस. सो जो तमिलनाडु के रिजर्व फॉरेस्ट में डिमांड करिए कि इसको जो है जो रिजर्व फॉरेस्ट दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्लेंडर लोरिस. तो स्लेंडर लोरिस जो है, इट इज अ नेटिव स्पीशी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. ये मोस्टली ट्रीज पर ही रहते हैं एंड ऊपर से ऊपर ही कूदते रहते हैं. ये इंसेक्ट, रेप्टाइल, प्लांट, शूट्स एंड फ्रूट्स है, यानी कि कार्निवोरस है. दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, सेमी डिसिडस फॉरेस्ट एंड swamps. And there are 2 species of slender loris, red slender loris and gray slender loris. They are endangered and the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Albino palm civet बेटा 129 years के बाद सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पाए गए. अल्बिनो पाम सिवेट आफ्टर 129 years they are found in the सतकोशिया टाइगर रिजर्व. सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? इट इज इन उड़ीसा. ओके, एंड ये 129 years बाद पाए गए. क्या है? दे आर द स्मॉल कार्निवोर मैमल. दे आर नॉक्टर्नल. दे आर फाउंड इन सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, and they are commonly found in China, Sri Lanka and southern Asia, and they can manage high temperature and high humidity. Okay, हिमालयन याक है नॉट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ. अब हिमालयन याक का जो है इंश्योरेंस हुआ करेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है किस स्पीशी का इंश्योरेंस अब हुआ करेगा. तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल ने बोला कि अब इसका इंश्योरेंस इनका हुआ करेगा. ठीक है, अब ब्लू फिन मशीर है. अर्लियर इट वाज एंडेंजर्ड, नाउ इट्स स्टेटस हैज बीन चेंज टू लीस्ट कंसर्न. तो मतलब इसकी कंजर्वेशन अच्छे से हो गई है. ब्लू फिन मशीर बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वो दिखती अच्छी है और बड़ी होती है. तो जो फिशरमैन होते हैं जस्ट टू हैव अ ट्रॉफी फिशिंग, वो ब्लू फिन मशीर को जो है दे प्रोवाइड इट एज अ ट्रॉफी ऑफ फिशिंग. अब ये जो मशीर है दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर, कि अगर जहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छी है तो दे कैन सर्वाइव, लेकिन जहां पर भी पोल्यूशन है वहां ये सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड दे आर ऑल्सो हैविंग वेरी कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. ठीक है, रोजवुड. बेटा रोजवुड की डिमांड बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? क्योंकि रोजवुड का यूज कहाँ होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, गिटार बजते हैं, फर्नीचर बनता है, फ्लोरिंग है, क्रेविंग है, मोल्डिंग है. ठीक है, इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1927. Okay, it is a hardwood tree. They are found in the evergreen and deciduous sub or tropical or subtropical forest. They survive in the moist soils. They survive in the moist soils and within the elevation of 300 to 1000 meters. Okay.
रेड सेंडर्स बताया ही था आपको। रेड सेंडर्स बेटा, इट इज अर्लियर was part of the near threatened species, but now it has become endangered because of very high smuggling and illegal cutting of these trees. ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं रेड सेंडर्स। दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। रेड सेंडर से इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। दे आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल बेटा ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये पाए जाते हैं शीशचलम और पालाकुंडा में ऑफ आंध्र प्रदेश एंड केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाए जाते हैं। ओके, वहां पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। रेड सेंडर्स दे ग्रो इन द रॉकी डिग्रेडेड फैलो लैंड्स एंड दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। फायदा क्या है कि भैया इनकी बहुत ज्यादा थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, फॉर कॉस्मेटिक्स, फॉर वुड वर्क्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इनकी होती है। ओके, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जलाधारा स्किटरिंग फ्रॉग है, ये वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में मिला है, न्यू फ्रॉग स्पीशीज जलाधारा स्किटरिंग फ्रॉग। ओके, जलाधारा स्किटरिंग फ्रॉग है, स्पीशी है, नई मिली है। एक और जो है नए एक टेस्ट हुआ है कि जो फ्रॉग्स हैं बहुत अलग अलग टाइप की साउंड निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन, ठीक है, अच्छी बात है। अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, ठीक है, उन्हें मुन्नार में अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग पाए गए हैं। दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रॉग स्पीशीज, सो दे आर फाउंड इन द मुन्नार रीजन, ठीक है। मिनर्वा पेंटाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वेस्टर्न घाट में एक फ्रॉग स्पीशी नई ढूंढी है, मिनरवर्या पेंटाली। उन्होंने अपने जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पर इसका स्पीशी का नाम रखा है, मिनरवर्या पेंटाली। ओके, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, आपको पता ही है वेस्टर्न घाट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लिटोरिया मीरा स्पीशी मिली है रेन फॉरेस्ट ऑफ गिनिया से। ओके, मीना लिटोरिया मीर। ओके, ये जो है इट इज अ चॉकलेट कलर्ड फ्रॉग, जैसा हैरी पॉटर की किताब में कहीं पे मेंशन था। आपने तो नहीं पढ़ा है, बुक नहीं पढ़ी है, मूवी देखी है, तो अगर किसी ने पता हो तो देखो, जो हैरी पॉटर में था कुछ ऐसा मेंशन, लिटोरिया मीरा। हाँ, लिटोरिया, ठीक है। अब नया एक और फ्रॉग मिला है, बहुत फ्रॉग मिले, देखो हमें नहीं लगता फ्रॉग से इतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आएंगे भी तो आपको कुछ नहीं याद रहना, ठीक है, कुछ नहीं याद रहना, इसलिए बस जल्दी आ जाए कि एक अरुणाचल प्रदेश में एक और फ्रॉग मिला है, इसका नाम है आदि कैस्केड फ्रॉग, ठीक है, आदि कैस्केड फ्रॉग, नया फ्रॉग मिला आदि कैस्केड फ्रॉग। ठीक है, फिर है आपकी नई एक और स्पीशी ग्लासमोसिस अकीकरवा, ठीक है, ये है एक बेरी की स्पीशी है। इट इज अ न्यू स्पीशी दैट इज फाउंड by the Biological Survey of India. It is endemic to Western. Okay? एक ये ऑक्टोपस जैसा फॉसिल मिला है, ठीक है, ऑक्टोपस जैसा फॉसिल मिला है, जिच इज अप्रोक्सीमेटली 82 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और ये ऑक्टोपस जैसा है जिसकी 10 लेग्स है। ऑक्टोपस की 8 होती है, इसकी 10 है, जिसमें से 2 लेग्स बहुत बड़ी है कंपेयर्ड टू द अदर्स, मतलब ट्वाइस द साइज। ओके,
ठीक है। अब एक सिम्बा, सिम्बा के बारे में सुना बच्चों? सिम्बा, सिम्बा मूवी भी है और एक नया सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयन, ठीक है। जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला कि भैया कहाँ है एशियाटिक लॉयन, मैनेजमेंट करना, क्योंकि एशियाटिक लॉयन सिर्फ आपके गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, है ना, दे आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट। तो उनका जो है कंजर्वेशन मैनेजमेंट वगैरह सब करने के लिए दे आर फाउंड इन दी गिर फॉरेस्ट। क्लियर? तो सिम्बा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिम्बा? तो आप लिख कर बताना, अ मूवी ऑफ रोहित शेट्टी दैट डिफाइज फिजिक्स। ओके, इट इज अ सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लायन। एक और स्पीशी मिली है, फिम्ब्रिस्टिलिस नीली एंड नीनोपोटिस प्रभुई, ठीक है। प्लांट स्पीशीज है, उन्होंने अपने अपने दो टेक्सोनॉमिस्ट या बॉटनिस्ट के नाम पर रखी गई, ठीक है। गेको है, आर्मी टैग है, आर्मी के मेघालय के रीजन से एक गेको मिला है तो उसको आर्मी टैग मिल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक नई मरीन रेप्टाइल फाउंड है, इसका नाम है काहे काहे टुसुस्का, ठीक है। काहे काहे टुसुस्का सच्चीकरम, ओके। काहे काहे टुसुस्का संचिकरम, इट इज अ न्यू रेप्टाइल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? काहे काहे टुसुस्का, वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प, ठीक है। तो अगली बार से कोई ताने दे तो बोल देना काहे काहे टुसुस्का, ओके। वन दैट कट्स शार्प, कहाँ मिला है? कोलंबिया, सेंट्रल कोलंबिया में उसका फॉसिल मिला, ठीक है। मरीन स्पीशी, उसका फॉसिल मिला है कोलंबिया। क्वेश्चन आ सकता है कहीं 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 टुसुस्का कहाँ मिला है, क्या है? एक चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर ये मिला है, बटरफ्लाई चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर, चॉकलेट बॉर्डर है सिक्किम से, ठीक है। इसका बॉर्डर चॉकलेट का है, सिक्किम से मिला, ठीक है। एक नई स्पीशी है, अलियन और गार्लिक जैसी है, इट इज फाउंड इन ठीक है। तो अनियन की गार्लिक जैसी स्पीशी उत्तराखंड से मिली। स्पीशी क्या तो पता, एक और जो स्पीशी मिली है स्पाइडर की, ग्लेविरिया बोरोडेक्सिपस क्लीनी, ठीक है, असम से मिली है, चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, ओके। ओके, अब एक पिस्टोरिया लालजी एक ट्री मिला है, दैट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द अंडमान आइलैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिस्टोरी पायरोस्ट्रिया लालजी from Andaman. Okay, it was found from the Tirur forest near the Jarawa Reserve forest. Okay, and Chidia Tapu, that is the Munda Pahad forest. It is given a critically endangered status. Okay, it is given the critical endangered status, that is as per the IUCN criteria, and this is found from Andaman. ठीक है, लालजी अगर आए तो याद रखना अंडमान से ट्री है which can go up to a height of अप्रोक्सीमेटली कितना, 15 मीटर, 15 मीटर हाइट तक चला गया, ठीक है। एक गोरोसिया मोमोसिस है, ये एक नई स्पीशी मिली है मोमोसी की, दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड 170 इयर्स आफ्टर इट वाज फाउंड, ठीक है। नहीं ये सब नहीं आने के चांसेस बहुत कम, मतलब रेयरली। साइंटिस्ट ने नई स्पीशी ढूंढी है बीटल की, ठीक है, ट्रिग्नोप्टेरस, एक पोलर स्पीशी मिली है, प्लांट स्पीशी अंटार्कटिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट स्पीशी इंडियंस ने ढूंढी है अंटार्कटिका में, जिसका नाम क्या है? बायरम भारतेनेसिस। बायरम भारतेनेसिस अ प्लांट स्पीशी फाउंड फ्रॉम अंटार्कटिका, ओके। बायरम भारतेनेसिस, भारत से याद रहेगा, इंडिया ने कहां ढूंढी है? इट इज इन दी भारती रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका, और भारती नाम क्यों? भारत से रिलेटेड भारती, ओके।
So Byram barathesis is a plant species found in Antarctica. बस हो गया याद। आपको स्पीशी में कुछ नहीं रहना है, जितना याद रहेगा उतना हमने बहुत अच्छे से करा दिया। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो बच्चों बता दीजिए, अदरवाइज एनवायरमेंट इकोलॉजी थंब। ठीक है, हमारे मेजर पोर्शन है इकोनॉमिक्स और खत्म हो गया, हमारा मेजोरिटी काम खत्म। तो बाकी 2 दिन में करा देंगे बाकी करंट अफेयर्स, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो साइंस के साथ साथ कराएंगे। अब हमारा मेजर पोर्शन खत्म, 5 to 6 क्लासेस में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। 15 मई तक करंट अफेयर्स हम लोग खींच देंगे। कोई डाउट हो तो बेटा बता दीजिए। नहीं, दिस संडे अगेन यू विल बी हैविंग अ टेस्ट, ओके। उसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्लास कब है इकोनॉमिक्स के जो है क्लास, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर, थैंक यू वेरी मच।